Alright जी, next question. The biological clock of a woman problem. By the way, बीच में भूख लग गई थी बोल बोल के. Had wonderful biryani. Now having chai. Alright. Dear Junaid, I hope you're doing well. My name is ABC. शर्मा जी का लड़का कह सकते हैं. And I'm 28-year-old from Udaipur, Rajasthan. Currently working with Amazon in Chennai, Tamil Nadu. I've been an admirer of your channel Ask Ganji Swag for quite some time. Your knack for combining humor with heartfelt advice is truly inspiring, and it has given me the confidence to reach out to you with a personal dilemma. To give you a little context about myself, I've always been someone who valued stability and clarity before stepping into a serious relationship. Growing up in a family oriented environment in Udaipur, I was deeply influenced by the idea that relationships should be built on a foundation of mutual understanding, trust, and long term compatibility. This belief, coupled with my focus on building a secure career, meant that I chose to delay dating until I felt truly ready to commit emotionally and financially. A few months ago, I met someone incredible through a mutual friend, and my perspective on relationships began to evolve. She is kind, compassionate, funny, and has this extraordinary ability to bring out the best in me. Over the past 3 months, we have grown close, and I find myself envisioning a future with her. She inspires me in ways I never thought possible, and being with her has made me feel like the timing was finally right for me to open my heart to someone. However, I am currently faced with a dilemma that has left me feeling conflicted. She has expressed a desire for us to get married within the next 6 months. While I deeply admire, एक सेकंड दोबारा मैं ऊपर देखूँ ये कितने अरसे पहले मिली थी. A few months ago you met someone और अब 6 महीने में वो कह रही शादी कर लें. While I deeply admire her decisiveness and understand her reasons, I feel that this timeline is a bit rushed for me. I want to take the time to truly get to know her on a deeper level, which I think is 2 years, to experience life's ups and downs together, and to see how we both respond to challenges. I believe that true compatibility is revealed not only in moments of joy but also during difficult times when we are tired, frustrated, or simply not at our best. Her reasoning for wanting to marry soon is both practical and valid. She is concerned about the biological clock, pointing out that pregnancies after 30 can come with potential complications. She also wants us to be young parents so that we can have the energy and patience to actively engage in raising children rather than finding ourselves stretched thin in our late 30s or 40s. I deeply respect her perspective and admire her clarity, but I cannot shake the fear of rushing into such a significant commitment without fully understanding each other. At the same time, I'm terrified of the possibility that standing my ground might result in losing someone who feels so right for me. Having spent so much time preparing myself for this stage of life, I find myself caught in a paradox. Should I prioritize taking things slowly and ensuring a solid foundation, or should I trust her vision and take a leap of faith, believing that our love will help us navigate any uncertainties in the future? Junaid, your words have guided so many of us through tough decisions, and I would deeply be grateful if you could share your insights on this matter. How does one balance their own instincts with the expectations of a partner, especially when the stakes feel this high? Thank you so much for your time and to read this, and I truly look forward to hearing your thoughts. So ये एक भाई हैं उदयपुर राजस्थान से इनका ताल्लुक है, चेन्नई में रहते हैं, अमेजोन में काम करते हैं, और ये काफ़ी रिलेशनशिप्स को लेके इनके अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मतलब ही नोज व्हाट ही वांट्स एंड ही नोज हाउ टू हैव इट, और फाउंडेशन बड़ी ज़रूरी है. अनलाइक मेनी ऑफ अस हु रश इनटू अ रिलेशनशिप बिकॉज हमारी ज़िंदगियों में वॉइड होता है, हमारे डैडी इशूज़, मॉमी इशूज़ होते हैं, और हमें अगर कोई प्यार से ज़रा सा हमारी बात सुन ले तो हम कहते हैं बस यही वो इंसान है. एक दिन थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस कर लूँ, मैं लैंप नहीं दिख रहा मेरा, और बस कहते हैं यही है. तो और फिर जब ज़िंदगी की तल्ख हकीकतें फेस करनी पड़ती हैं और फिर पता चलता है यार हमने शायद जल्दी कर ली एंड दिस वाज नॉट द राइट पर्सन. सो आपका जो अपना पर्सपेक्टिव है, आई विश आई हैड दैट सेम पर्सपेक्टिव, एंड आई होप इस तरह ही लोग सोचा करें. प्रॉपरली उसकी फाउंडेशंस देखें, अप्स एंड डाउन्स देखें, ये बहुत ज़रूरी है. बिकॉज व्हेन वी मीट और partner, when we meet someone शुरू में तो we tend to be in our best behavior because we want to impress them वगैरह वगैरह, और फिर वक्त के साथ साथ आपका एक compatibility बनती है, आपकी जो है कंफर्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, एंड देन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आना शुरू होती हैं. पीपल हु लिटरली रश इनटू मैरिजेस, उनको फिर देर से पता चलता है कि यार उन्होंने ये क्या कर लिया और थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट वगैरह वगैरह. अब आपने जो ये कहा है, देखिए उनका पॉइंट वैलिड है, आपने उनकी एज नहीं लिखी. अच्छा, 30s की प्रेगनेंसीज अगेन मैं औरतों की साइड से नहीं बोल सकता.
30s की प्रेगनेंसीज बिल्कुल होती होंगी, बट अब मैं ये कहना कि भाई मेरी बीवी, माई सन वॉज बॉर्न व्हेन माई वाइफ वॉज 40 और समथिंग, तो अब अगेन हर इंसान डिफरेंट होता है, एंड जस्ट बिकॉज वो हुआ तो ज़रूरी नहीं कि अब सब 40 पे करें, नहीं। अच्छा, इस पे मेरे एक डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मैं खुद कन्फ्लिक्टेड हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू में। फॉर एग्जाम्पल, एट वन पॉइंट मैं ये कहता हूँ कि भाई स्टेबिलिटी, एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियल बट ऑल्सो इमोशनल स्टेबिलिटी पहले हो, आप दुनिया देख लें वगैरह वगैरह, और उसके बाद यू गेट इनटू समथिंग। बट एट द सेम टाइम आई जेन्युइनली विश मेरा बच्चा भी 20 साल का होता, राइट? तो वो एक बॉन्ड ही अलग होता, मेरी भी हाई एनर्जी होती, उसकी भी हाई एनर्जी होती, और फिर ये कि आप साथ साथ बड़े हों। बिकॉज मैंने अपने बॉस जो कि पठान फैमिली से ताल्लुक़ है, वो गांव में उनकी शादी हुई, 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी, और जो है 18 में बच्चा हो गया, और बाय द टाइम ही वॉज 40 उनका बच्चा जो है ऑलरेडी यूनिवर्सिटी जा रहा था। सो आई यूज टू रियली एडमायर दैट बॉन्ड। और वो सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, आप मोर और लेस एक आध जनरेशन पीछे ही होते हो। अनलाइक माई फादर एंड माई यंगेस्ट ब्रदर, कितने साल का फ़र्क है? 42 साल का फ़र्क है। ही वॉज 42 व्हेन ही हैड हिम, राइट? तो वो जनरेशन ही, वो रेडियो जनरेशन, वो अलग जनरेशन, राइट? तो अच्छा, इसमें एनर्जीज भी हाई होती हैं वगैरह वगैरह। एक सेकंड में ज़रा थोड़ा और एडजस्ट कर लूँ कैमरे को, ओके, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अब वही वाली बात नहीं, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट। जब व्हेन अ किड इज इन, मेरे फिर ये भी एक थॉट है कि यार, इफ़ यू कैन, यू नीड टू ट्रैवल एज मच एज यू कैन जवानी में, क्योंकि फिर जब बच्चा इन क्वेश्चन आया था तो फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर बच्चा रात को सोने भी नहीं देगा, बच्चा सेक्स वुक्स भी नहीं करने देगा हॉलीडे पे, फिर उसकी प्रैम कौन चलाएगा? किड्स आर एग्जॉस्टिंग। अब ना ही वो प्रैम वाला बच्चा, भले वो 5 साल का भी हो, वॉकिंग भी हो, बच्चे इरिटेट होते हैं, बच्चे तंग करते हैं, खाना पीना, सोना जागना, उठना, ओढ़ना बिछोना, गर्मी सर्दी, बच्चे तंग करते हैं, और फिर आपकी जो बॉन्डिंग होनी चाहिए ना, वो नहीं हो पाती। फिर आप वेट करते हो जब ये बच्चे बड़े होकर कॉलेज यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, शादी कर लेंगे, और फिर हम ट्रैवल पे निकलेंगे, फिर आपके गोडों में दर्द होगा, आपकी आईसाइट ठीक नहीं होगी, आपके 10,000 मसले होंगे, आपके साथ आपका मेडिकल बैग भी ट्रैवल कर रहा होगा जिसमें 15 किस्म के वाइटामिन होंगे, और डायबिटीज़ की, और इंसुलिन वगैरह 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 वगैरह, राइट? तो जितना जवानी में आप इंजॉय कर सकते हैं ना, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट। अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं आप, तो यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट, सो यू हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। तो खैर, अब मेरी लाइफ में जो हुआ सर्कमस्टेंशियली सही, मेरे पास वो मीन्स नहीं थे कि मैं 20-22 में शादी कर लूँ। दिल तो हो गया था मेरा, मगर ये कि माई मदर वॉज वेरी राइट एंड शी डिस्करेज मी। आई लाइक समवन, एंड खैर वो हो भी नहीं पाता। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी लॉन्ग, तो फिर नो कंप्लेंट्स। मगर मैं अपने कुछ दोस्त ऐसे हैं, लाइक आई मेट समवन थ्रू अ फ्रेंड, एंड शी वॉज व्हाट 45, and she has a daughter who's going to university, and she still looks super young, and like she's traveling the world, वगैरह वगैरह। खैर, anyway, coming to your point, अब बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल एक इशू है, और ये भी ज़ाहिर है, अगर हम स्टेटिस्टिकली बात करें तो जितनी हाई एनर्जी में आप इस पेनफुल प्रोसेस से गुजरें, और तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, आप में एनर्जी भी रहती है, आप बच्चों को संभाल भी सकते हो, खेल भी सकते हो। ऑफ कोर्स मैं उस तेज़ी से लिल के साथ नहीं भाग सकता पार्क में, जितना मैं शायद 10 साल 15 साल पहले भाग सकता था, राइट? तो वो एक ज़ाहिर फ़र्क रहता है। लेकिन आप कुछ मंथ पहले मिले हो और 6 महीने के अंदर वो शादी का अल्टीमेटम दे रही हैं, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन। एक काम करो, जो आपने लाइक आधा वो चले, आधा आप चलो। अगर आपने 2 साल का मार्क रखा है ना, उसको 1 साल करो, थोड़ा एक्सपेडाइट करो अपना सर्वेलेंस जो भी है, और इसमें इफ़ यू कैन तो ट्रैवल साथ कर लो। ट्रैवल में होता ये है कि ट्रैवलिंग में इंसान सही वाला रिवील होके सामने आता है, हु यू आर मैरिंग, हु यू आर गोइंग टू बी विद, राइट? तो ये करके आप देख लें, और आपको अप्स एंड डाउन्स नज़र आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रेड फ्लैग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको शायद, अगर आप कॉफ़ी के लिए मिलते हो तो एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलते हो, तो बट लाइक इफ़ यू गोइंग समवेयर, मीट हर फ्रेंड्स, या दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई वुड इनकरेज टू ऑल द न्यू अपकमिंग कपल्स। एक बार अपनी होने वाली के दोस्तों से मिलने, और अपने दोस्तों से भी मिलवा लें, ताकि आप भी जान लें, बिकॉज ईच मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल। तो आप उनके दोस्तों से समझ जाएंगे वो क्या हैं, और वो भी आपके दोस्तों से समझ जाएंगी कि आप क्या हैं, ठीक है? अब वो अलग बात है, अगर आप शाणे हैं तो आप वो वाला ग्रुप नहीं मिलाएंगे, आप दूसरा वाला ग्रुप मिलाएंगे, ठीक है ना? आप कॉरपोरेट ग्रुप मिला लेंगे, आप छपड़ी ग्रुप नहीं मिलाएंगे, सॉरी फॉर द वर्ड। सो या, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्स ना करें फ्रेंड्स, एक बार मिल लें, सो यू हैव एन आइडिया कि हु यू आर मैरिंग। बिकॉज होता ही है कि बहुत सारे जो आपके पास आउटपुट आ रहा है ना, वो इनपुट कहीं से आ ही रहा होता है, राइट? एवरीबडी लाइक्स टू शेयर,
कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, एंड देन फ्रेंड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस अलॉट, बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। तो ये आपको ज़रा नज़र आ जाएगा कि ये थॉट प्रोसेस अगर कहीं से आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है पोटेंशियली, या क्या उनकी सराउंडिंग्स रही हैं वगैरह वगैरह। तो यू कैन टेल अलॉट अबाउट अ पर्सन बाय लुकिंग एट देयर फ्रेंड्स। वो एक है ना डॉन पेनिया, ही इज़ अ बिलियनर, वो थोड़ा सा नहीं, खैर काफ़ी राइट विंग अंकल हैं, तो वो यही कहते हैं शो मी योर फ्रेंड्स आई शो यू योर फ्यूचर। तो उससे भी बड़ा कुछ आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हु यू गोइंग टू सेटल। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट गिव्स यू अ ब्रीफ आउटलुक या इन लुक कह लें इनटू द पर्सन यू आर अबाउट टू बी सेटलिंग डाउन विद। बाकी ये कि फाइनेंशियली डील करके देखें, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग गिव अवे इनटू हु यू मैरिंग, बिकॉज यू नो आपको समझ आ जाएगा कि आप टीम प्लेयर के साथ रिश्ते में जा रहे हैं या फिर आप किसी सेल्फिश इंसान, बिकॉज पैसे को लेके इंसान बड़ा सेल्फिश होता है। एंड इफ़ द पर्सन लव्स यू मोर देन एनीथिंग, तो फिर मोर देन एनीथिंग में ये भी आता है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अंधाधुन होकर पैसे लौटाए अगले पे ये भी नहीं कह रहा। इट्स ऑलवेज अ मिडिल ग्राउंड, बट समवन हु बिलीव्स इन बिल्डिंग अ हाउस टुगेदर, बिल्डिंग अ ड्रीम और बिल्डिंग अ फ्यूचर टुगेदर, रादर देन समबडी हु इज़ लाइक कि नहीं सब मेरा है, बस आई एम जस्ट गोइंग टू बी स्पेक्टेटर एंड यू डू द हार्ड वर्क। ऐसे नहीं होता। रही बात इनटू एक्सपेक्टेशंस एंड हैविंग चिल्ड्रन, तो वो भी जो है ना, यू नीड टू हैव अ क्लियर डिस्कशन ऑन दैट। जो लोग नए नए शादी में जाते हैं, ख़ास तौर पे अरेंज मैरिजेस में, ख़ास तौर पे अरेंज मैरिजेस में या इवन लव मैरिज में, देखें लव मैरिज में भी अगेन यू ओनली नो अ गुड वर्जन ऑफ द पर्सन, फिर जब आप साथ रहते हो तो पता चलता है। तो प्लीज़ उसको 1-2 साल तो आप दें उसको समझने में, उसका हाउस होल्ड क्या है, वो खुद क्या है, एंड देन डिसाइड हैविंग अ चाइल्ड। आप बच्चा ले आते हैं 7वें-8वें महीने में, ठीक है, पहले ओवर में बच्चा आ जाता है आपके, ठीक है, और फिर आपको पता चलता है यार वो जो लड़का है वो तो फाइनेंशियली भी अब्यूज़ कर रहा है और फैमिली भी इस तरह की है, घर बैठो ये नहीं करो वो नहीं करो, एंड देन नाउ यू हैव अ किड, अब आप खुद फंस गई हैं, ठीक है। सेम वे फॉर अ गाय, लाइक यू नो इफ़ अगर आपके सामने रिवील होता है कि यू नो आपकी चॉइस गलत रही है, एंड लाइक द गर्ल इज़ नॉट अ टीम प्लेयर, या फिर ये कि उसकी एस्पिरेशंस मैच नहीं करती, या उसकी जो आउटलुक है टूवर्ड्स लाइफ वो आपकी वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं करता, तो इट्स ईजियर टू पार्ट वेज रादर देन कि अब आप ज़बरदस्ती में, कोई फेविकॉल से थोड़ी जोड़ दिया है कि अब आप ज़िंदगी भर जुड़े ही रहेंगे। नहीं समझ आ रहा, आगे बढ़ें। पीपल मेक मिस्टेक्स, गलतियाँ हो जाती हैं, लोग झूठ बोल देते, पीपल लाई देयर वे इन टू योर लाइफ एज वेल। बहुत बार ऐसा होता है कि वो बहन की पकाई हुई चीज़ों का दस्तरखान की तस्वीर भेज दी और जब आपकी शादी हुई तो पता चला इसको तो दाल भी नहीं बनाने आती, इसका तो अंडा ही सही नहीं है, इसको तो चावल ही सही नहीं है, राइट। तो you only find out later on once you live together. So please do not bring a child into an already messed up equation. उससे equation मज़ीद बिगड़ जाती है। तो in your case sir, Mr. शर्मा, तो ये क्लियर एक्सपेक्टेशन रखें शादी को लेकर, बच्चों को लेकर, ठीक है, करना है, लेकिन ये कि पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझना है। यू हैव टू बी अराउंड योर पार्टनर when she's on her periods and she has to be around you when the Wi-Fi is not working. You know, ये बेसिक मैट्रिक होता है एक दूसरे को समझने के लिए कि क्या मॉन्स्टर INC है हमारे पास। एनीवे, सो आई वुड हाईली सजेस्ट फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, 1 साल का वक्फा दें, डोंट रश इनटू थिंग्स, एंड ठीक है, इट्स हर बायोलॉजिकल क्लॉक एंड शी हैज़ ऑल द राइट टू रिजर्व दैट एंड बी वरिड अबाउट इट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फ्यूचर। इंसान ज़िंदगी में, मेरा ये मानना है कि शादी एक ही बार करता है और फिर उसके बाद वो ट्रॉमा छूटता नहीं है आपसे, वो कहीं ना कहीं आपके साथ लगा ही रहता है, ठीक है। इफ़ यू गेट इनटू अ सेकंड मैरिज और थर्ड मैरिज और इवन फोर्थ मैरिज, ज़ख़म जो है ना, नॉट इन एवरी केस भरते नहीं हैं, एंड देन फिर आप उसका ट्रॉमा रिस्पॉन्स आप दूसरे पे अप्लाई कर रहे होते हो, फिर उसका ट्रॉमा वो भी कलेक्ट कर करके फिर वो फर्दर डैमेज की तरफ जा रही होती है चीज़। सो बी वेरी वाइज अबाउट दिस इज़ द ओनली डिसीशन दैट यू विल एवर मेक, क्योंकि माँ बाप का डिसीजन आपका नहीं था, बहन भाई का आपका नहीं था। दोस्त यार बदलते रहते हैं, स्कूल के अलग, कॉलेज के अलग, काम के अलग, मोहल्ले के अलग, मोहल्ला चेंज होता है, दोस्त चेंज हो जाता है, बट दिस इज़ वन डिसीजन दैट इज़ एंटायरली योर्स एंड शुड बी योर्स, बिकॉज दिस कैन मेक योर लाइफ लाइक एनी थिंग, यू विल बी 7वें आसमान पे, और ब्रेक योर लाइफ कि आप पाताल लोक में चले जाएंगे और फिर देर इज़ नो रिटर्न फ्रॉम देयर। फिर आप जितनी भी बाद में कर लें, वो फिर आपको जो घाव लगेगा वो फिर आप ज़िंदगी भर सहेंगे। तो यार एक ही ज़िंदगी है भाई, मेरा तो यही मानना है, अपने टर्म्स पे जिएं, खुश रहें, खुशी से जिएं,
और जहाँ पीस मिलता है वहाँ रहें। इंसान हमेशा पीस की तरफ ही नेविगेट करता है। कुछ भी कर लो, बाय हुक और बाय क्रुक, दे विल ऑलवेज चूज पीस, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। सो बी वेरी विजिलेंट, बी वेरी माइंडफुल अबाउट योर डिसीजन। और जितने लोग और भी सुन रहे हैं, आई अगर आप रेगुलरली ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप गिन सकते हैं कि मैंने कितनी बार ये बात बोली है कि दिस इज़ द ओनली डिसीजन दैट इज़ गोइंग टू मेक योर लाइफ ग्रेट और ब्रेक योर लाइफ फॉर एवर। So be very careful, okay? I hope I answered your question. Thank you so much for writing in. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।